નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, class 3. Today we will learn subject English unit 4. Mr. Rabbit plays a prank. Let's learn some more activities from the story. Today we will learn activity 5A. Activity 5. Now let's read the heading of it. What happened when write number 1 to 8 in the space of as they occur in the story. तो बच्चों यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं? यस. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 to 8 सेंटेंसेस है, तो हमें उसको रीड करते जाना है और उसको ऑर्डर के हिसाब से, जैसे ही हमारे स्टोरी में 1 बाय 1 जो सेंटेंस यूज़ होते जाते हैं, ऐसे आपको सेंटेंसेस को प्रॉपर नंबर्स देने हैं. जो सेंटेंस स्टोरी में फर्स्ट यूज़ होता है उसे हम नंबर 1 देंगे, उसके बाद यूज़ होता है तो हम 2, 3, 4 ऐसे 1 to 8 तक नंबर्स देने हैं. राइट? ओके, नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस. Here is the first sentence. Mr. Rabbit asked for help to Mr. Elephant and Mr. Whale. Here you have to write the numbers, right? Okay. Now let's read the second sentence. Mr. Rabbit ran into the bushes and beat the drum, right? Okay. Now let's see the second page. Page number 28. Please open it. Third sentence is, Mr. Rabbit tied another end of the rope around Mr. Elephant's trunk. And number fourth sentence, Mr. Elephant and Mr. Whale talked about their size. And now next sentence, Mr. Rabbit laughed at lot on seeing them fallen. Now next is Mr. Whale and Mr. Elephant pulled each other with all their strength. Okay, now let's see the next sentence. Mr. Rabbit tied one end of the rope around Mr. Whale. Now last sentence we will see, Mr. Elephant fell over backward and Mr. Whale turned over in the air. Right? Okay, तो यहाँ पे हमने सारे सेंटेंसेस रीड कर लिए. तो अब आपको बच्चों क्या करना है पता है? यू हैव टू रीड द स्टोरी. आपको स्टोरी भी रीड करते जाना होगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेंटेंसेस के नंबर दे सकोगे. राइट? सो चिल्ड्रन प्लीज़ read story carefully and write numbers. Here I have done answer for you, children. Now look at the first sentence. I have write number 1 here. Number 1 is this sentence. Mr. Elephant and Mr. Whale talked about their size. That was the first sentence of this our story. वो लोग दोनों Mr. Elephant और Mr. Whale दोनों बातें कर रहे थे ना उसके साइज के लिए. Yes. तो यहाँ पे हमने नंबर 1 दिया है. राइट? नाउ लेट्स फाइंड द सेकेंड सेंटेंस ऑफ इट. Number 2 we will write the sentence. Mr. Rabbit asked for help to Mr. Elephant and Mr. Whale. So children, you have to write number 2 here. Number 1 sentence, right? Because after he thought a trick, तब उसने जैसे ही ट्रिक सोचा कि मैं प्रैंक करूँगा तभी उसने हेल्प मांगने की सोची थी ना. यस. नाउ लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस इज हियर, मिस्टर रैबिट टाइड एंड वन एंड ऑन द रोप अराउंड मिस्टर व्हेल. राइट? दिस इज द नंबर थर्ड सेंटेंस. एंड नाउ लेट्स फाइंड नंबर फोर्थ सेंटेंस. Here is the number 4, right? Okay. Mr. Rabbit tied another
end of the rope around Mr. Elephant's trunk. पहले उसने व्हेल को बांधा था, राइट, इसलिए हमने नंबर 3 वहाँ पे दिया, और नंबर 4 बाद में उसने किसको बांधा था, मिस्टर एलिफेंट की ट्रंक को, राइट. ओके, तो हमें सेंटेंस 4 सेंटेंसेस हमें मिल गए हैं. Here is the number 5 sentence. Mr. Rabbit ran into the bushes and beat drum. उसने पहले हेल्प मांगी थी, फिर उसने क्या किया, 2 रोप के एंड्स को बांधा, और लास्ट में उसने हिंट दिया था कि जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ड्रम बीट करूँगा, राइट. तो जैसे ही ख़त्म हो गया तो नंबर 5 सेंटेंस पे आता है मिस्टर रैबिट रैन इनटू द बुशेस एंड बीट द ड्रम. Number 6 sentence is Mr. Whale and Mr. Elephant pulled each other with all their strength, right? तो उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगा के उसने क्या किया था, बहुत ही ज़ोर से दोनों ने एक दूसरे को खींचा था. तो यहाँ पे हम क्या देंगे, नंबर 6. ओके, now let's find number 7. Here is the number 7. Mr. Elephant fell over backward and Mr. Whale turned ओवर इन द एयर. तो बहुत ही ज़ोर से खींचने के कारण क्या हो जाता है, रोप टूट जाती है, राइट. तो रोप टूटने के बाद क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में गिर जाते हैं. एलिफेंट बैकवर्ड में गिर जाता है और व्हेल कहाँ पे, ऑन द एयर, पानी में उछल के गिरती है ना. हाँ, तो यहाँ पे हम देंगे नंबर 7. नाउ लेट्स सी नंबर 8. हियर यू कैन सी नंबर 8, राइट. Mr. Rabbit laughed a lot on seeing them. तो वैसे भी उसे फ़न ही करना था. तो जैसे ही उसने देखा कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और बहुत ही खींचते जा रहे हैं और दोनों की रोप टूटने से वो गिरता है, मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हेल दोनों गिर जाते हैं ना, तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था. इसलिए वो क्या कर रहा था, मिस्टर रैबिट वॉज लाफिंग, राइट. तो वो देख के क्या हो जाता है, वो बहुत ही हंसते रहता है. तो यहाँ पे हम देंगे नंबर 8. तो यहाँ पे हमारे नंबर 1 to 8 तक सेंटेंसेस के नंबर्स कंप्लीट होते हैं, राइट. और हमारी एक्टिविटी 5A भी कंप्लीट होती है. तो आप यहाँ पे नंबर्स राइट डाउन कर सकते हो. पहले आपको स्टोरी रीड करते जाने हैं और बाद में नंबर्स राइट डाउन करने हैं, राइट. ओके, here is your answers. You can write it, right? Okay. Now let's start activity 5B. Hello children, Standard 3rd, subject English. Unit 4, Mr. Rabbit plays a prank. Today we will learn activity 5B. Answer the following question, right? Okay. Here is the first question. What are the special physical characteristics of the animals of this story? तो बच्चों, आपको इस स्टोरी में जो हमने मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक जो हमने स्टोरी रीड की थी और हमने एक्सप्लेन भी किया था, हमने बहुत ही अच्छे से सीखा था, राइट. तो इस स्टोरी में जो 3 आपको एनिमल्स दिए गए हैं, मिस्टर व्हेल, मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर रैबिट, तो आपको इन तीनों एनिमल्स के बारे में विशेषता, उसकी विशेषता जो उसकी बॉडी के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जो भी विशेषता हो इसमें बताई गई है वो आपको इसमें लिखना है, राइट. ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट. आवर आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट. मिस्टर व्हेल वाज द बिगेस्ट क्रीचर इन द सी. तो मिस्टर व्हेल ऐसे मानते थे ना कि मैं सी में, समुद्र में सबसे बड़ा प्राणी हूँ, बहुत ही बड़ा प्राणी हूँ, मेरे जैसा कोई बड़ा प्राणी है ही नहीं, राइट. ओके, एंड ही was very strong and he can pull out 20 cows from the deepest ocean. वो मानता था ऐसे कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मिस्टर व्हेल और मिस्टर एलिफेंट दोनों बातें कर रहे थे ना, दोनों टॉक कर रहे थे, राइट. तो ऐसे मानते थे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो 20 काउस को पुल कर सकता है डीपेस्ट ओशन, बहुत ही डीप में ओशन में फंसी हुई काउ को भी मैं 20 काउस को मैं बाहर निकाल सकता हूँ.
वैसे उसकी स्ट्रेंथ थी, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बताई जा रही है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, राइट। नाउ सेकेंड क्रीचर, राइट, दूसरा प्राणी हम देखते हैं मिस्टर एलिफेंट। अब हम मिस्टर एलिफेंट के बारे में बात करेंगे। मिस्टर एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट क्रीचर इन द लैंड। ये तो हम भी मानते हैं कि लैंड में सबसे बड़ा क्रीचर तो एलिफेंट ही है। उससे बड़ा कोई प्राणी यहाँ तक कभी हमने देखा नहीं है। पहले के ज़माने में था जो डायनासोर ऐसे, लेकिन नाउ वी कैन टेल द एलिफेंट इज द बिगेस्ट क्रीचर इन द लैंड, राइट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग वी विल से, ही कैन पुल आउट, सॉरी, creature in the land, he can pull out 20 cows from the deep in the mud. वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, राइट। हम तो मानते ही हैं कि एलिफेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने आप को कितना स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी मानता था कि वो 20 काउस फंसी हुई मड में, कीचड़ में फंसी हुई 20 काउस को पुल कर सकता था। क्योंकि जब मिस्टर रैबिट ने कहा था कि मेरी काउ बहुत ही डीप में फंस गई है, स्टक हो गई है, तब मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट ने क्या कहा था कि एक काउ की क्या बात कर रहे हो, मैं तो 20 काउस को पुल आउट कर सकता हूँ, इट इज वेरी इजी फॉर मी, राइट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मिस्टर रैबिट। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वेरी स्मार्ट। Yes, Mr. Rabbit was very smart, क्योंकि जैसे ही उसने मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट की बातें सुनी थी, तभी उसने सोच लिया कि ये दोनों बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मुझे इसको सबक सिखाना है और उसे थोड़ा फन करना था, राइट। तो तभी उसने सोचा, और उसने एक सिंपल सी ट्रिक से उसने दोनों बिगेस्ट क्रीचर इन द लैंड एंड बिगेस्ट क्रीचर इन द ओशन, दोनों को एक ट्रिक से हरा दिया, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम मानते हैं कि लिटिल मिस्टर रैबिट इज वेरी स्मार्ट, ही इज रियली वेरी स्मार्ट। उसने अपनी स्मार्टनेस से बता दिया, प्रूव कर दिया कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसकी स्मार्टनेस से, राइट। ओके, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So now children, we will start our second question, right? Okay. Now let's read our question first. Why did the rabbit play a trick? Okay children, can you tell me why did the rabbit play a trick? क्या आप बता सकते हो उसने ट्रिक क्यों खेली थी? Okay, let's see the answer of it. Because Mr. Whale and Mr. Elephant were talking about their physical features. आपने पहले ही स्टोरी में जब रीड किया होगा तभी आपको पता चला होगा कि दोनों अपनी फिजिकल फीचर्स के बारे में बातें कर रहे थे। कि एक कह रहा था कि मैं बहुत ही सबसे बिगेस्ट हूँ लैंड में, और एक मिस्टर वेल कह रहा था कि मैं सबसे बिगेस्ट हूँ सी में, राइट। तो दोनों फिजिकल फीचर्स की बातें कर रहे थे। वो कौन सुन रहा था? मिस्टर रैबिट, राइट। ओके, एंड they were telling each other that they are very strong. दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस लैंड में, सी में, हमारे जैसा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो ये बातें सब रैबिट सुन रहा था, और तभी उसको सोचा था कि अब मुझे ट्रिक प्ले करनी है, और तभी उसको एक फन क्रिएट करना था, उसे एक फन चाहिए था। तभी उसने सोचा, सो मिस्टर रैबिट प्ले अ ट्रिक फॉर फन। जैसे कि हमने स्टोरी में सीखा था कि उसने बहुत ही स्मार्टनेस से दोनों को हरा दिया, सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल इन द लैंड एंड सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल क्रीचर इन द सी। तो दोनों को आसानी से ऐसे ही मिस्टर रैबिट ने हरा दिया, राइट। तो इसलिए उसने ट्रिक प्ले की थी। नाउ लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन। Number 3 is, did Mr. Rabbit really have a cow? क्या मिस्टर रैबिट के पास काऊ थी? Yes or no? Of course नहीं थी, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? No, Mr. Rabbit did not have cow, क्योंकि उसके पास काऊ नहीं थी। जस्ट वो तो ऐसे ही प्रैंक कर रहा था, वो मजाक कर रहा था कि मेरे पास काऊ है और वहाँ पे फंसी हुई है। यस, ओके। तो यहाँ पे हमारे नंबर 2 और नंबर 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी आवर fourth question. Okay, now let's start question number 4. We have to read the first question of it, right? Okay.
लोग ये गए थे ना, यस, तो हमारा आंसर ये है, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी अवर फिफ्थ क्वेश्चन. Who was the strongest, Mr. Rabbit, Mr. Whale, or Mr. Elephant? Okay, children, can you tell me who is the strongest in the story? क्या बता सकते हो? क्या मिस्टर एलिफेंट, या फिर मिस्टर व्हेल, और या फिर मिस्टर रैबिट? ओके, सपोज मैं तो ऐसे मानती हूँ कि इस स्टोरी में सबसे स्ट्रॉन्ग तो मिस्टर रैबिट है, बिकॉज नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ इट. Mr. Rabbit was the strongest in the story because of he played with prank and beat them. एक मजाक से, सिर्फ एक मजाक से, एक ट्रिक प्ले करने से उसने दोनों बिगेस्ट एनिमल को हरा दिया था, राइट? तो इस स्टोरी के हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि मिस्टर रैबिट सबसे स्ट्रॉन्ग है, राइट? ओके, नाउ you can write this answer very clearly. Okay, children. So, here our activity 5B is complete. Thank you for joining us.